पर्यावरण में प्रदूषण के असर से आज मानव शरीर में कई तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं, जिनका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। बढ़ते वायु प्रदूषण ने युवा, बच्चों और बुजुर्गों सहित सभी जीवों का जीना मुहाल कर रखा है और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। जिस धरती पर हमें जीवन मिल रहा है, बाकी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसे हरा भरा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। पर यह बड़े दुख की बात है कि हमें इन सब बातों का ज्ञान होते हुए भी हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। इस अंक में हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की, जानेंगे इसका इतिहास, जानेंगे कैसे निपटें जलवायु परिवर्तन से, साथ ही साथ जानेंगे प्रदूषण का हमारे जीवन पर भविष्य में कितना बुरा असर पड़ेगा। आप देख रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर द वॉइस न्यूज़ की खास पेशकश द वार्निंग, अ स्टोरी ऑफ अवर एनवायरनमेंट। સમગ્ર વિશ્વ જ્યારે ક્લાઇમેટ ચેન્જના ઓછાયા હેઠળ જીવી રહ્યું છે ત્યારે સમગ્ર વિશ્વ 5 જૂનને પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઉજવે છે ત્યારે ખાસ કરીને ઔદ્યોગિક વિસ્તાર વાપી જેવા વિસ્તારમાં આનું મહત્વ ઘણું બધું વધી ગયું છે. આથી લગભગ 50 વર્ષથી આપણા ગુજરાતની સૌથી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ છે અને એમાં અનેક ઉદ્યોગો આવેલા છે. ત્યારે આ સમયે એન્વાયરમેન્ટના પ્રશ્નો અને સાથે સાથે લોકોને પડતી મુશ્કેલીઓની સાથે આ વિસ્તારમાં જે રીતે પર્યાવરણના કામો થયા છે એ ઘણો મહત્વપૂર્ણ. ખાસ કરીને વાપી ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં જેટલા વૃક્ષો વવાયા છે એટલા વૃક્ષો ગુજરાતની કોઈ પણ એસ્ટેટમાં વવાયા નથી. અહીંયા સુંદર ઓક્સિજન પાર્ક પણ બનાવવામાં આવ્યું છે અને સાથે સાથે એસ્ટેટના રોડની બંને બાજુ ઓફિસ ગાર્ડન પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. આના લીધે ક્લાઇમેટ ચેન્જની અસર તો બેસે પણ સાથે સાથે લોકોને ચોખ્ખી હવા મળશે અને શહેરની સુંદરતામાં તો વધારો થયો છે, સાથે સાથે સ્વચ્છતામાં પણ વધારો થયો છે. ફરીથી સમગ્ર વાપીની ટીમ આયન સોય કે દરેક ફેક્ટરીના ઓનર છે એ બધાને અભિનંદન આપું છું કે આપણે સૌ આ વર્ષે પણ આ દિવસ સુંદર જમીન વધુ વધુ વૃક્ષો વાવ્યા અને વોઇસ ન્યૂઝ આ બીજી એક નવી એડિશન આપી રહી છે એને પણ અભિનંદન. હું મનીષ ગોરવાની, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વલસાડ. દર વર્ષે 5મી જૂને વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી થાય છે. લોકોને પણ અપીલ કરવા માંગુ છું કે આજના સંજોગોમાં પર્યાવરણને બચાવવું ખૂબ જ અગત્યનું છે. એક પર્યાવરણ જ છે જેના આશરે આપણે જીવન વ્યાપન કરીએ છીએ અને તમામ પ્રકારના સંસાધનો ભેગા પણ કરીએ છીએ અને વપરાશ પણ કરવો જોઈએ. તો આપ લોકોને અપીલ કરવા માંગુ છું કે વધારેમાં વધારે સંખ્યામાં વૃક્ષો વાવો, જેટલા પણ પર્યાવરણિક સંસાધન છે એમની રક્ષા કરો અને પર્યાવરણની રક્ષા પ્રત્યે સચેત બીજા લોકોને પણ કરો, એવી જિલ્લા પંચાયત વતી આપ લોકોને અપીલ કરું છું. આપણે જાણીએ છીએ કે વાપી ગ્રીનને જે દેખાય છે તમને આખું ગ્રીન સોસાયટીનું ડેવલપમેન્ટ એ એક પર્યાવરણના જતન માટે અને પર્યાવરણને એક બૂસ્ટ માટે અને જીઆઈડીસીમાં જે બધું પોલ્યુશનનું જે કંટ્રોલ કરવા માટેનું જે બધા વાપી જીઆઈડીસીમાં બહુ પોલ્યુશન, અત્યારે જાઓ તમે કોઈ પોલ્યુશન નથી. ઇન્ડસ્ટ્રીના મિત્રો પોતે જ પોતાની રીતે આ બધું ડેવલપ કરીને પોલ્યુશનને કેવી રીતે ઓછું થાય અને કેવી રીતે નાબૂદ થાય એના માટે એક આ મોહિમ ચલાવી રહ્યા છે અને એમાં વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન એમાં એનો સાથ સહકાર આપી રહ્યું છે. અને આવનારા સમયમાં, અત્યાર સુધી તો આપણે કાયમ કરતા રહીએ છીએ, પણ આવનારા સમયમાં બી આ રીતે વૃક્ષોનું જતન કરીને, વૃક્ષો વાવીને પર્યાવરણને શુદ્ધિકરણ અને પર્યાવરણ માટે ઇન્ડસ્ટ્રીના મિત્રો બધા કામ કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે એનજીઓની સાથે બેસીને બી આ કામ કરી રહ્યા છે. અને ભવિષ્યમાં આ રીતે કામ કરતા રહેશે કે નવી પેઢી માટે આપણે કંઈક લોકોને આપવું હોય તો આપણે પર્યાવરણનું જતન કરવું પડે. એ રીતે ઉદ્યોગકારના મિત્રો બી એનું કામ ભવિષ્ય માટે બી કરતા રહેશે. संपूर्ण पृथ्वी पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। बदलते ग्लोबल वातावरण ने पूरे विश्व को कुप्रभावित किया है, जिसका असर दक्षिण एशिया में भी देखा और महसूस किया जा सकता है। चिंता की बात यह है कि भारत भी एशिया के इसी क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से 2050 तक भारत की जीडीपी को 2.8% की क्षति हो सकती है। रिपोर्ट में बिल्कुल साफ है कि बढ़ते तापमान से ऋतु चक्र अव्यवस्थित होगा, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा होगा। सूखा, बाढ़ और तूफान बढ़ सकते हैं, कृषि को नुकसान होगा, मानव जीवन अव्यवस्थित होगा।
महात्मा गांधी ने कहा था कि आपको उस बदलाव का हिस्सा होना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। प्रदूषण के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपायों के लिए आवाज बुलंद करें। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी चिंता का विषय बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 24% लोगों की मौत हृदय रोग, 25% स्ट्रोक, 43% क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और 29% फेफड़ों के कैंसर से होती है। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से मानव निर्मित होता है और मानव स्वास्थ्य को ही नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए यह मानव जाति के लिए विशेष चिंता का विषय है। बात करें एक व्यक्ति को एक दिन में सांस लेने के लिए लगने वाली ऑक्सीजन की मात्रा की, तो वो लगभग 900 ग्राम तक है। कम से कम हम अपने लिए तो इतनी ऑक्सीजन के स्रोत तैयार करें, इतने वृक्ष तो लगाएं कि अपने खुद के जीने भर की ऑक्सीजन प्रकृति से ले सकें। वो दिन दूर नहीं, जैसे आज पानी की बोतल खरीद कर पी रहे हैं, वैसे ही कल हमें अपने और अपने परिवार के लिए शुद्ध हवा की बोतल खरीदनी पड़े। बचपन में मैंने देखा था कि जब भी कोई बीमार होता था तो वे पेड़ के नीचे अपनी खाट लगा लेते थे। वे कहा करते थे कि जब भी बीमार हो जाओ, पेड़ों की शरण में चले जाओ। पेड़ हील करते हैं, इंसान जल्द ठीक होता है। हम इसीलिए बीमार होते हैं जब हम प्रकृति और पेड़ पौधों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं उद्योग नगरी वापी शहर की, जो नित्य नए प्रयोगों के साथ प्रदूषण को कम करने के लिए सफल हो रहा है। वापी का नाम सुनते ही आपके मन में प्रदूषित शहर की आकृति उतर आई होगी, जो वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, वापी ग्रीन, GPCB व उद्योग जगत के प्रयासों से अब कल की बात हो चुकी है। समय के साथ वापी ने स्वयं को संवारा है और निरंतर प्रयत्नशील है, जिसमें सबसे पहला श्रेय जाता है वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन व उनकी सहयोगी संस्थाओं को, जिन्होंने मिलकर वापी वन से वृंदावन नाम की मुहिम शुरू की, जो आज एक वट वृक्ष बन चुकी है। आइए तो संक्षिप्त में जान लेते हैं उद्योग नगरी से विख्यात उद्योगों के शहर वापी के बारे में। 22 किलोमीटर में फैले वापी में लगभग 1400 से अधिक औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। जिले का पहला विश्वविद्यालय होने का गर्व भी वापी को ही प्रदान हुआ है। देश के कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, मोटर जगत की लगभग सभी कंपनियों के शोरूम, ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम वापी की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से निर्मित हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि भी शामिल हैं। वापी शहर की आबादी लगभग 20 लाख के करीब है, पर इस शहर में 1400 से ज़्यादा छोटे बड़े उद्योग हैं, जिसे मुख्य रूप से पेपर उद्योग, डाइस और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। वापी का खास महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह शहर मेट्रो सिटी मुंबई और सूरत से लगभग समान दूरी पर स्थित है। साथ ही एक ओर समुद्री तटों के लिए सुप्रसिद्ध संघ प्रदेश दमन और वहीं दूसरी ओर प्रकृति को संजोए हुए हरा भरा वन क्षेत्र दादरा नगर हवेली सिलवासा विस्तार है। दमन और दादरा नगर हवेली दोनों ही क्षेत्रों में पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए अद्भुत संसार से कम नहीं है। यहाँ यह बता देना जरूरी होगा कि उमरगांव के समुद्री तट को बंदरगाह की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। यह विशालकाय बंदरगाह धीरे धीरे आकार लेता इस क्षेत्र की विरासत को संजोए रखेगा। वापी एक ऐसा शहर है जहाँ का रेलवे स्टेशन दमन और दादरा नगर हवेली के लिए बहुत उपयोगी साबित होता आया है। वापी के ही डूंगरा विस्तार में बुलेट ट्रेन का भव्य स्टेशन भी निर्माणाधीन है, जो आने वाले समय में आसपास के विस्तार के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही दूरगामी दृष्टि और स्थानीय विधायक तथा गुजरात सरकार में वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल जैसा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाल रहे कन्हूभाई देसाई के प्रयासों का नतीजा है कि वापी अगले 2 सालों के भीतर अपने अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को अपना आदर्श मानने वाले कन्हूभाई देसाई देश की प्रगति में उद्योग को विकास में रीढ़ की हड्डी मानते हैं। किसी भी देश या राज्य में उद्योगों का विकास मतलब रोजगार की गारंटी तो है ही, साथ ही GDP में अमूल्य योगदान होता है। मंत्री का पदभार संभालते ही
राज्य के साथ साथ अपने गृह क्षेत्र में पर्यावरण संबंधित कई ऐतिहासिक प्रोजेक्टों को मंजूरी दिलाने में सफल हुए हैं। इन सभी उपलब्धियों के कारण विस्तार में फैले पेपर पल्प, केमिकल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मा समेत अन्य विश्व प्रसिद्ध उद्योगों से वापी की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। 5મી જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ હોય છે, તો આ વખતે એની થીમ છે બીટ પ્લાસ્ટિક પોલ્યુશન. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસમાં અમે એક મહિનાની એક સતત અમે મુહિમ જાહેર કરતા હોઈએ છીએ, જેમાં અલગ અલગ પોકેટ ગાર્ડન્સ અને ડિફરન્ટ વેરાયટી ઓફ પ્રોગ્રામ્સ કરતા હોય છે, જેનાથી અમે ઇન્ડસ્ટ્રીના મેમ્બર અહીંયાના રહેણાંક વિસ્તારના લોકોને માહિતગાર કરતા હોઈએ છીએ અને આ એસ્ટેટને ગ્રીન કેવી રીતે રાખવી, ક્લીન કેવી રીતે રાખવી, એ અમે વર્ષો પહેલા વાપી બનશે વૃંદાવનની થીમ હેઠળ આ વસ્તુમાં મુહિમ અમે લીધેલી 2015-16થી અને સતત અમે એમાં કાર્યરત રહ્યા છે. વીઆઈની ગ્રીન સોસાયટીએ નોટિફાઈડ એરિયા સાથે અમે જે આ એસ્ટેટ સાથે અમે એમઓયુ કર્યું છે કે જેના માધ્યમથી ઇન્ડસ્ટ્રીના જે સીએસઆરમાં અને જે એન્વાયરમેન્ટ ક્લિયરન્સમાં જે પૈસા ફાળવવાના હોય છે એ અહીંયા જ્યાંથી એ પૈસા કમાય છે ત્યાં જ અહીંયા આ એસ્ટેટને પણ સુંદર અને સારી રીતે રાખી શકે એના માટે વીઆઈની ગ્રીન સોસાયટી અને નોટિફાઈડ એરિયા સાથે મળીને નવા નવા અમે પેચીસ ડેવલપ કરતા હોઈએ છીએ. આપ સૌ જાણતા હશો કે આ બાયોકેમિકલ સર્કલથી લઈને તે સરદાર ચોક સુધી, કુંદર કેમિકલ ટુ સરદાર ચોક, વિનંતી નાકાથી લઈને તે કેવીએસ કોલેજનો પેચ આ વખતે અમે ઓપન કરવાના છે. એટલે જે આર્ટરિયલ રોડ્સ જે એસ્ટેટને વીઆઈ વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટના જે આર્ટરિયલ રોડ્સ કહેવાય છે એ એસ્ટેટના આર્ટરિયલ રોડ્સને અમે ડેવલપ કરવા માંગીએ છીએ. ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી આમાં આગળ આવી છે અને આ માધ્યમથી આ 5મી જૂન 2023 વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના માધ્યમથી હું સૌ ઇન્ડસ્ટ્રીને એ વિનંતી કરીશ કે આપ સૌ આગળ આવો. અમારી વીઆઈની આ ટીમ વીઆઈ ગ્રીન સોસાયટી હર હંમેશ આપની સાથે છે અને આ એસ્ટેટને ક્લીન એન્ડ ગ્રીન અને વાપી બનશે વૃંદાવનને આપણે કેમ આગળ લઈ જઈ શકીએ એના માટે હર હંમેશ અમે તત્પર રહીશું. पर्यावरण के लिए अभी सबकी एक जिम्मेदारी भी होने वाली है, होना चाहिए, क्योंकि अभी पूरा विश्व में जो हमारा साइंटिस्ट होता है कि एक आदमी के पर्यावरण के लिए करीब 428 पेड़ चाहिए और आज हमारे पास इतना नहीं है, कम है और इससे सरकार जरूरी प्रयास कर रही है. यदि हमारी भी जिम्मेदारी था मंत्री तरीके तो मैंने जो 4 साल मेरे को काम करने का मौका मिला उसमें ज़्यादा में ज़्यादा पर्यावरण कैसा डेवलप हो सके इस वजह से हमने वनीकरण बनाने का प्रयोग किया. મારું નામ અરુણભાઈ ખંડુભાઈ ગરાસિયા, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી છું. ખાસ તો ખેડૂત મિત્રો અને અન્ય જે પણ આપણે વન સાથે જોડાયેલા છે એ મિત્રોને વિનંતી છે કે આપની જે પણ જગ્યા હોય ત્યાં વૃક્ષારોપણ કરે અને પર્યાવરણને બચાવે. वापी शहर के लिए लोगों में ऐसी धारणा है कि यह दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। इसीलिए वापी के वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और उसी की सहयोगी संस्था वापी ग्रीन ने उद्योगों को साथ मिलाकर यहाँ एशिया का सबसे बड़ा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोत का माध्यम दमन गंगा नदी है, ऐसी नदी जो पूरे औद्योगिक विस्तार को अपने आंचल में समेट लेती है। वापी शहर के पास से होकर गुजरती दमन गंगा नदी, जिसे पश्चिम की गंगा कहते हैं, नदी की कुल लंबाई 131 किलोमीटर है। नदी के ऊपरी इलाके में कोई उद्योग नहीं है, वह निर्मल जल लेकर आगे बढ़ती है। देखा जाए तो वापी और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में छोटी बड़ी हजारों इकाइयां हैं। एशिया का दूसरा केमिकल जोन भी इसी क्षेत्र को कहा जाता है। कंपनियों के कारण क्षेत्र का विकास तो भरपूर हुआ, लेकिन इसने पर्यावरण को भी प्रभावित किया है। चलिए जानते हैं कैसे और किस प्रबंधन के कारण वापी की आबो हवा में सुधार आया है और पर्यावरण का संतुलन करने के लिए क्या क्या कारगर उपाय किए गए। दक्षिण गुजरात में वापी शहर में सिरमौर उद्योगपति रज्जूभाई श्राफ ने उद्योगों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की नींव रखी। बात करें श्री रज्जूभाई श्राफ की तो विश्व के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में उनका नाम आता है।
जिनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पदक से सम्मानित किया जा चुका है। મારું નામ PR ખાંભલા છે। હું મદદનીશ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી તરીકે વલસાડમાં ફરજ બજાવું છું। અમારા ભૂસ્તર વિજ્ઞાન અને ખાણ ખનિજ ખાતા દ્વારા નિરંતર ગેરકાયદેસર ખાણકામ અંગે પગલાં ભરવામાં આવે છે, જે અંતર્ગત ઈસવીસન 2018થી નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલના ચુકાદા અંતર્ગત 41% પર્યાવરણીય વળતર ફંડ લેવામાં આવે છે, જે લોકો ગેરકાયદેસર ખાણકામ કરે છે। તેમજ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે આપ સૌ જાગૃત નાગરિકોને સંદેશ આપવાનો કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ધરતી માતાને આપણે માતાનો દરજ્જો આપ્યો છે, તો આપણે ધરતી માતાનું જતન કરવું એ આપ સૌને આપણી ફરજ છે। VIA वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बात करें तो वापी के विकास में VIA की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन 1971 में अस्तित्व में आया, जिसकी स्थापना UPL के अध्यक्ष और संस्थापक श्री रज्जू भाई श्राफ के द्वारा की गई, जिसे VIA के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में वापी औद्योगिक एस्टेट में लगभग 1700 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं। वापी औद्योगिक एस्टेट के पर्यावरण और परिवेश के सुधार के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान VIA और ग्रीन सोसाइटी द्वारा अनेक सुंदर कार्य किए गए। वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन महाद्वीप के सबसे बड़े रासायनिक क्लस्टरों में से एक, जो पर्यावरण और परिवेश को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। VIA को हमेशा गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड GPCB, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी वापी जैसे सरकारी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर समर्थन मिलता रहा है। VIA ने वापी ग्रीन एनवायरो लिमिटेड VGEL नामक एक पर्यावरण प्रबंधन कंपनी भी स्थापित की है। VGEL द्वारा दमन गंगा नदी के किनारे निष्प्रभावी पानी छोड़ने के पहले वापी के CETP में उद्योगों के अर्ध उपचारित अपशिष्ट जल को सफलतापूर्वक उपचार किया जाना है। VGEL ने TSDF साइट में उद्योगों के खतरनाक ठोस कचरे को सुरक्षित जमा करने की जिम्मेदारी भी ली है। इसी तरह VIA ने हरित गतिविधियों के उद्देश्य से ग्रीन सोसाइटी बनाने के लिए GIDC और नोटिफाइड अथॉरिटी एरिया वापी के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। सदस्यों के सहयोग से ग्रीन सोसाइटी ने पिछले 1 साल में ही नव पुनर्विकास J टाइप रोड पर 9504 वर्ग मीटर का एक ग्रीन बेल्ट और सरदार चौक से विनंती नाका तक 15,045 वर्ग मीटर का एक और ग्रीन बेल्ट सफलतापूर्वक विकसित किया है। ग्रीन सोसाइटी ने मुक्तिधाम के पास नेशनल हाईवे नंबर 48 की सर्विस रोड पर VIA 4 रास्ता और ग्रीन बेल्ट के कोने पर एक पॉकेट गार्डन भी विकसित किया है। वापी औद्योगिक एस्टेट के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान VIA और ग्रीन सोसाइटी द्वारा कई तरह की गतिविधियां संपन्न हुईं, जिसमें इंडस्ट्री के बाहर पॉकेट गार्डन स्वयं में बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए MSME इकाइयों को उनके समर्थन के रूप में ग्रीन सोसाइटी ने उद्योगों के सहयोग से 18 पॉकेट गार्डन विकसित किए हैं। इस वर्ष VIA की ग्रीन सोसाइटी ने सफलतापूर्वक 4,164 बड़े पेड़ और 24,285 छोटे पौधों और फूलों की झाड़ियां लगाई हैं। आगामी वर्षों में वापी ग्रीन पर्यावरण को उत्तम बनाने के लिए प्रतिबद्ध प्रयासों के साथ ही वापी के हर नुक्कड़ और कोने को पेड़ पौधों से हरा भरा बनाने के लिए कटिबद्ध है। वृक्षारोपण गतिविधियों के अलावा VIA GPCB के साथ संयुक्त रूप से पूरे वर्ष विभिन्न विषयों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए बैठकों का आयोजन किया जाता है, ताकि उद्योगों के सदस्यों को उनकी पर्यावरणीय चुनौतियों को कम करने में स्थायी पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान किया जा सके। धरती माँ की रक्षा के लिए पर्यावरण और परिवेश को बनाए रखने की आवश्यकता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई इंटरैक्टिव सत्र और ज्ञान साझा करने वाले सत्र भी आयोजित किए गए हैं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में द वॉइस मीडिया आपको ऐसे ही पर्यावरण वीरों से रूबरू कराने का प्रयत्न कर रही है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं डॉक्टर R.K. नायर के बारे में, जो एक मलयाली बिजनेसमैन हैं और गुजरात के क्षेत्र उमरगांव के निवासी हैं। इन्होंने पर्यावरण संवर्धन के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं।
जिसके कारण वर्तमान भारत सरकार के अलावा भारत की अन्य कई राज्य सरकारों ने भी पुरस्कृत किया है। डॉक्टर आर के नायर की संस्था फॉरेस्ट क्रिएटर ने अब तक देश के 12 राज्यों में 88 मिनी फॉरेस्ट में 16.5 लाख पेड़ लगाए हैं। इन पेड़ों को लगाने के लिए वह जापान की सुप्रसिद्ध तकनीक मियावाकी का प्रयोग करते हैं। इस तकनीक में पहले 2 वर्षों तक गर्मियों के दौरान पेड़ों को 2 बार पानी दिया जाता है और उसमें नमी बनाए रखने के लिए पेड़ के निचले हिस्से को सूखी घास से ढक दिया जाता है, जिसके बाद उन पेड़ों की जड़ें जमीन के भूगर्भ में बढ़ने लगती हैं, जिसके बाद उन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके इन प्रयत्नों को सरकारी संस्थाओं और कॉरपोरेट जगत का भी उचित सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर आर के नायर, जो फॉरेस्ट क्रिएटर संस्था के को फाउंडर हैं, उन्होंने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के तहत तारापुर में औद्योगिक पार्क में 4 एकड़ जमीन, जहां रासायनिक कचरे को एक मिनी फॉरेस्ट में फेंका जा रहा था, उसे अपने प्रयासों से हरित क्षेत्र में बदल दिया। 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में कच्छ में 16 एकड़ जमीन पर बनाए गए स्मृति वन का रखरखाव भी इन्हीं की संस्था फॉरेस्ट क्रिएटर और प्रशासन के मिले-जुले प्रयासों से हो रहा है। इस स्मृति वन में 2,23,000 पेड़ लगाए गए हैं। वहीं पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में बने शहीद वन में 5 एकड़ जमीन पर 40,000 पौधे लगाए गए हैं। बात करें उनके स्थानीय विस्तार की, उमरगांव तालुका के नारगोल बीच की अंदाजन 3 साल पहले लगाए गए 1,20,000 पौधे अब धीरे धीरे पेड़ों की शक्ल ले चुके हैं। समुद्र किनारे लगाए गए इन पौधों की मदद से एक मिनी फॉरेस्ट आकार ले रहा है, जिससे समुद्र की तेज हवाएं आसपास में आए किसानों के खेतों को जो नुकसान पहुंचता था वह कम हुआ और आंधी का भी खतरा टला। इस मिनी फॉरेस्ट में 3 तालाब भी बनाए गए हैं, जिसमें बारिश के पानी का भी संग्रह किया जाता है, जिससे वहां का वाटर लेवल भी अप हुआ है। आइए मिलते हैं डॉक्टर आर के नायर से। हमारे साथ आज विशेष महानुभाव है जिनका नाम है डॉक्टर आर के नायर, जिन्होंने जापानीज तकनीक से इस वन को कम समय में कैसा बड़ा किया जाए, इनकी रखरखाव कैसी रखी जाए, इसके लिए इन्होंने बहुत ही डिटेल में इन्वेस्टिगेट करके इन्होंने प्लान करके और इसको एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे इन्होंने 3 से 4 पॉन्ड भी बनाए हैं, जिससे कुदरती पानी को, बारिश के पानी को संग्रह किया जा सके और गांव के लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले, साथ साथ इस वन को डेवलप करने में भी फ़ायदा मिले। तो आइए जानते हैं ऐसी शख्सियत जो प्रधानमंत्री के साथ भी दिख चुके हैं, हमें प्रधानमंत्री ने भी उनको नवाजा है। तो आइए मिलते हैं श्रीमान डॉक्टर आर के नायक सर से। नमस्कार सर, वेलकम टू द वॉइस न्यूज़ सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर, ये जो वन आपने डेवलप किया है तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, ये नारगोल का मालवन बीच है, दरिया किनारे, गुजरात का वलसाड़ जिला, उमरगाम तालुका का नारगोल, बिल्कुल दरिया को लग करके ये जगह है। ये लगभग 7.5 एकड़ है। ये बंजर ज़मीन थी। जब यहाँ पे एक मियावाकी फॉरेस्ट बनाने के एक ऐसा मॉड्यूल दिमाग में जब आया तो वैसे सोच करके इसको डेवलप किया है कि गांव को उससे लाभ मिले, खेडूत को उससे लाभ मिले और दरिया का जो सॉइल इरोशन है उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए। उसी हिसाब से जब टेक्निक ढूंढा गया तो हम डॉक्टर अकीरा मियावाकी जो जापानीज टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी द्वारा जंगल बनाने का एक मॉड्यूल हम कर ही रहे थे। भारत का ऑलमोस्ट 12 राज्य के अंदर अब तक 109 जंगल बना दिया है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा दरिया किनारे का मियावाकी फॉरेस्ट बनाने का एक योजना बना करके उसमें CSR फंड द्वारा यहाँ पे 1,20,000 पेड़ 7.5 एकड़ में लगाया है। सर, यहाँ पे जब आपने ये जो शुरू किया वन बनाना, तो क्या आपको कोई क्या दिक्कतें आई और आपको यहाँ पे लोकल प्रशासन का क्या सहयोग मिला और जो भी इन्वेस्टर जिसने इसमें इन्वेस्ट किया है उनका क्या सहयोग रहा? यहाँ पे फॉरेस्ट बनाने के टाइम सबसे पहले जब सर्वे किया तो सबसे बड़ा ये था कि यहाँ बैक वाटर का काला कीचड़ बहुत पड़ी थी और डाउन था बहुत, और खारा मट्टी है और सैंडी सॉइल है, खारा हवा है, पानी भी खारा है। तो यहाँ जंगल कैसा बना सकता है,
तो वो एक मॉड्यूल दिमाग में रख करके ऐसा योजना बनाए कि इसमें थोड़ा मिट्टी डालनी पड़ेगी, क्योंकि खड्डा बहुत नीचे था, तो मिट्टी डालना है। साथ में ब्यूटिफिकेशन, क्योंकि दरिया किनारा है तो टूरिस्ट आएंगे तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए। उस दोनों एंगल को देखते हुए हमने ग्राम पंचायत के साथ सहयोग से बात करके यहाँ पे ऐसा योजना बनाया कि मिट्टी बाहर से नहीं लाएंगे, मिट्टी यहीं पर कुछ तालाब बनाएंगे ताकि बारिश का पानी का लाखों करोड़ों लीटर का संरक्षण भी होगा, साथ साथ में वो मिट्टी इसमें कीचड़ में डाल करके यहाँ पे एक वन भी बनेगा, तो दोनों काम हो जाएगा, साथ में खेडूत के लिए लाभ मिलेगा। इसमें ग्राम पंचायत ने बहुत अच्छा सहकार दिया है, प्रशासन का आज की तारीख में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है ऐसी मियावाकी फॉरेस्ट बनाने के लिए। तो इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ द्वारा उनका CSR फंड को यूटिलाइज कर करके ये 7.5 एकड़ में अच्छा जंगल उसके बाद हमने इसको बना करके तैयार कर दिया है। इसको अभी लगभग ये जुलाई को 2 साल पूर्ण होगा। सर, जैसे कि आपने बताया 2 साल पूर्ण होगा, तो 2 साल पहले जब आपने यहाँ पे जो वन की शुरुआत की थी बनाने की, तो जब आपके साथ कौन कौन थे और आपने जब यहाँ पे इतना बड़ा वन खड़ा कर दिया है तो आपको कैसा फील हो रहा है? सर, यहाँ पे बनाने के टाइम में हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो सामाजिक वनीकरण विभाग वलसाड़ रेंज उमरगांव, उनका बहुत अच्छा सहयोग मिला। अलग अलग वैरायटी का पौधा देने के लिए हमने आंध्रा से भी बहुत अलग अलग वैरायटी के पौधे इधर लेके आया। फिर लोकल लोगों को रोजगारी देने का भी एक मॉड्यूल हमने इसमें तैयार करके लोकल लोगों से ही किया। रोज का 200 से 250 लेबर लिए गए हम लोग, और लगभग 1 से 1.5 महीना तक काल तक इसका बाकी सब प्रिपरेशन चला। 27 दिन में प्लांटेशन किए हमने। तो प्लांटेशन करने के टाइम में वही, क्योंकि ये बैरन लैंड थी और सैंडी, इतनी गर्मी चल रही थी और दरिया से खारा हवा आ रहा है, डर भी इतना लग रहा था कि पौधे छोटे छोटे 1-1, 1.5 फीट के पौधे हैं, वो संरक्षण होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में 93 वैरायटी लेकर के श्रब्स, फ्लावर्स, फ्रूटिंग, कैनोपी, टिम्बर, ये 5 कैटेगरी लिया जाता है मियावाकी फॉरेस्ट जब बनाने के टाइम में। वो छोटे जो श्रब होते हैं वो ज़मीन के नीचे ही फैला होता है, उसके पीछे फिर इसकी वजह से पीछे आप देख सकते हैं एकदम डेंस फॉरेस्ट, मतलब यहाँ आप खड़ा रहो आपको पीछे कुछ नहीं दिखेगा, ये डेंस हो गया। मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट बोलते हैं इसको। 1.5 से 2 फीट की डिस्टेंस में एक पौधे के दूसरे पौधे के जो अंतर है वो उतरेंगे, 1.5 से 2 फीट है। कन्वेंशनल प्लांट में लगभग 8 से 10 फीट होता है, इसमें 1.5 से 2 फीट है। तो इस अंतर से बना करके इसमें अंदर हमने चलने के लिए वॉकवे भी बनाया। वॉकवे भी ऐसा डिज़ाइन किया है कि टूरिस्ट आएंगे तो उनको जंगल के अंदर से होकर के वो दरिया किनारे बाहर निकल करके वहाँ अपने शाम का दरिया किनारा देख सकते हैं, फिर वापस जंगल से बाहर आ सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट आज की तारीख में इसमें लार्ज स्केल में हुआ है। फिर अपना जो माइग्रेटेड बर्ड्स है वो नारगोल में कुछ इतिहास पहले आते थे, अभी काफ़ी साल से नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी ये वन बनने के बाद में माइग्रेटेड बर्ड्स भी दूसरी देश की जो पक्षियाँ हैं वो यहाँ आ रहा है। तो टूरिस्ट को वो भी एक मज़ा आ रहा है अभी कि आएगा तो माइग्रेटेड बर्ड्स उनको देखने को मिलता है, और पक्षियाँ उनके घर बना करके रहने का उनका संरक्षण भी इसमें हो गया। मतलब पक्षी की संरक्षण भी हो गया, छोटे छोटे कलरफुल कीड़े मकोड़े जो उसकी संरक्षण हो गया, साथ में करोड़ों लीटर बारिश का पानी रिटेन हो रहा है। साथ साथ में अभी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज चल ही रहा है, ऐसे में अपना भारत देश सबसे आगे आकर के उसको लड़ना कैसा है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंटल लाइफ बोल के मिशन लाइफ जो नारा है उसको सबसे आगे रखा है कि अपना जीवन शैली के साथ साथ में अपन पर्यावरण को कैसा संरक्षण कर सकते हैं। जब ऐसी जंगल बनेगा तो इसके साथ साथ छोटे पक्षियों की संरक्षण होगा, अन्यथा कुछ साल बाद कुछ छोटे पक्षियों के केवल चित्र अपन देख पाएंगे, हकीकत में वो पक्षियाँ रहेंगी नहीं। अगर ऐसी जंगल होगा तो ठंडक माहौल भी होगा, ग्लोबल वार्मिंग के सामने लड़ सकता है, क्लाइमेट चेंज के सामने हम लड़ सकता है। पानी संरक्षण के लिए हमारा तैयारी यहाँ ऑलरेडी हो चुका है। साथ साथ में खारा हवा जो आजू बाजू की जो खेडूत को जो जाता था उसकी वजह से खेती सबसे ज़्यादा नहीं बना सकते थे, उसकी संरक्षण भी हो गया क्योंकि ये ग्रीन बैरिकेड बन गया जो हवा को रोक देंगे। उसके अलावा खेडूत की जो खेती में जो बोर है उसमें जो खारा पानी है और कुछ अच्छा पानी नहीं है क्वालिटी, उसकी पानी की क्वालिटी भी सुधर जा रहा है ये ऐसी डेंस फॉरेस्ट बनने की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश का पानी तालाब में संरक्षण हो रहा है, प्लस ये जंगल भी संरक्षण कर रहा है। कुल मिला करके जल वन वायु परिवर्तन के लिए एक सबसे अच्छा मॉड्यूल यहाँ पे तैयार हुआ है। सर, अभी की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में पर्यावरण के लिए जो पर्यावरणविद है उनकी बहुत ही चिंता जताई है उन्होंने कि आने वाले कुछ सालों में अगर हमने इसका रक्षण नहीं किया, पर्यावरण के प्रति हमारी फ़र्ज़ हमने नहीं निभाई, तो आने वाला भविष्य हमारा बहुत ही ख़राब होने वाला है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम एक दूषित पर्यावरण दे के जाने वाले हैं, ऐसा भी उनका कहना है। तो सर, अगर मान लीजिए कि आज से अगर हम 10 साल बाद की अगर कल्पना करें, आज हम खड़े हैं 2023 में, अगर हम 2033 की बात करें तो अगर यही माहौल रहा और पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक नहीं हुए तो आपके हिसाब से सर क्या हो सकता है और परिस्थितियाँ कितनी गंभीर हो सकती है?
सर मेरे अनुभव के हिसाब से, क्योंकि मैं गया 10-12 साल से ये जंगल बनाने का मॉड्यूल लेकर के अक्का भारत में घूम रहा हूँ और जंगल बना रहा हूँ, बहुत सारे जगह सर्वे करके भी आता हूँ, तो उसमें क्या कर सकता हूँ देख रहा हूँ। भारत एक विकसित होता हुआ देश है, उसमें भी बहुत तेज़ी से विकसित होता हुआ देश है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व के बाद, आप मोदी जी की नेतृत्व के बाद अगर देखोगे तो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत लार्ज स्केल में हो रहा है, और इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना ही चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो रेवेन्यू नहीं बनेगी, रेवेन्यू नहीं बनेगा तो देश चलना बहुत मुश्किल होगा। रेवेन्यू तैयार होना ज़रूरी है, उसके लिए इंडस्ट्री की भी ज़रूरत है। तो ऐसे में इंडस्ट्री डेवलप होना है तो कुछ जगह पे इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन तो होगा, डेवलपमेंट के लिए ब्रिज बनेंगे, रोड बनेंगे, सब बनेगा। उसके सामने हम उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकता है, वो इस तरह का मॉड्यूल करना पड़ेगा जो बैरन लैंड है, खाली जगह बहुत है जहाँ पे कुछ नहीं है, गांडा बबूल से भरा है, कोई तालाब की आवरण पूरा जो पड़ा है वो पेवर ब्लॉक डाल करके अपन उसको भर रहे हैं। विदाउट आप पेवर ब्लॉक के जो मॉड्यूल के बदले में वहाँ पे एक जंगल की मॉड्यूल बना दो, डेंस फॉरेस्ट, इस तरह मियावाकी फॉरेस्ट को तैयार कर दो, वो एक डेंस फॉरेस्ट रहेगा, बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट भी उसमें तैयार हो गया। साथ साथ में जो अभी टेम्परेचर हाई होते जा रहे हैं, एवरी ईयर 1 से 2 डिग्री बढ़ने की संभावना है, उल्लेख किया और हो भी रहा है। और इस साल अगर आप साइंटिस्ट की सुना होगा तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट बोलने की ज़रूरत है, हमको खुद को भी अनुभव हुआ है कि लास्ट ईयर से ये साल 30% ज़्यादा हीट वेव चला है इंडिया के अंदर, पूरा देश के अंदर हीट वेव सबसे ज़्यादा चला। बारिश भी आप देख रहे हैं उत्तर से चालू हो रहा है, राजस्थान में बारिश हो गया, कच्छ में बारिश हो गया, अहमदाबाद में बारिश हो गया, जबकि केरला से शुरू होकर के ऊपर जाना चाहिए था। मतलब पूरा माहौल बिगड़ चुका है और बिगड़ते बिगड़ते जाएगा। उसका कारण क्या है कि हमारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उसके सामने ऐसी पर्यावरण के संरक्षण की ज़रूरत है, केवल जंगल का ही नहीं, पानी के लिए तालाब के संरक्षण होने की ज़रूरत है। आज गुजरात में लार्ज स्केल में उसके संरक्षण कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। साथ साथ में ये ऐसी जंगल की संरक्षण होने की ज़रूरत है, जीव राशि की भी संरक्षण होने की ज़रूरत है। छोटे छोटे जो जीवियाँ हैं वो संरक्षण होना ज़रूरी है, क्योंकि उनका रोल पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा है। साथ साथ में आज के जो छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे, दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस प्लानट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस प्लानट का जो फ्यूचर है वो छोटे बच्चे, उनके अंदर एक संदेश सबसे ज़्यादा स्पीड में जाना चाहिए, जो यूज़ एंड थ्रो और प्लास्टिक ना यूज़ करे। क्योंकि आज कोई भी नाला या जलाशय में आप जाके देखोगे तो आपको यूज़ एंड थ्रो ही दिखेगा। प्लास्टिक ग्लास, चाय के ग्लास, पेपर ग्लास, बर्थडे में यूज़ किया हुआ ग्लास और पेपर्स, सारे नाला को आपका ब्लॉक कर दिया है। उसको सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। आप रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस, 3R को फॉलो करने के लिए छोटा बच्चों से संदेशा चालू होना चाहिए, बड़ों से नहीं। वो बच्चे बड़ों को संदेशा दे सकते हैं, ऐसा होना चाहिए कि यस, मेरे लिए आप इस प्लास्टिक थैली में केक लाओगे तो पापा मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूंगा। इस तरह का मॉड्यूल बच्चे माँ बाप को बोलना चाहिए। हम ट्रैवल करने के टाइम में, मैं भी आज स्टील के ग्लास और एक प्लेट मेरे बैग में हमेशा होता है। मैं फ़्लाइट में भी जब पानी लेता हूँ तो मेरा स्टील के ग्लास उनको देता हूँ, ताकि मुझे पेपर ग्लास नहीं चाहिए और प्लास्टिक ग्लास नहीं चाहिए, थर्मोकोल ग्लास नहीं चाहिए। मैं कहीं रेस्टोरेंट में बैठता हूँ तो कांच का ग्लास या स्टील का ग्लास में उनको चाय या छाछ देना उसमें दे लेता हूँ, मैं स्ट्रॉ नहीं लेता हूँ। वो भी सोचते रहते हैं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक ही आदमी, इतने लोग रोज आ रहे उसमें एक ही आदमी ऐसा है। यस, एक आदमी नहीं, सभी लोग इस तरह अगर सोचेंगे तो ज़रूर हमारा प्लानट बचेगा। प्लानट बचेगा तो हम बचेंगे। देयर इज़ ओनली वन अर्थ बोलते हैं हम। चंद्रलोक और मंगल में जाकर के पानी है क्या, मट्टी है क्या ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जहां हमें पानी मट्टी अच्छा दिया है इस प्रकृति ने, उसे खाली हमें संरक्षण करने की ज़रूरत है, फिर से रीडेवलप करने की भी ज़रूरत नहीं। डिमोलिश करना हुआ कम करके संरक्षण करने की ज़रूरत है। 2023 से 2033 तक अगर बात अपन करेंगे, अगले 10 साल अपन सोचते हैं, 10 साल के में अगर अपन पर्यावरण में क्या बदलाव आएगा, अगर मैं सोचता हूँ एक पर्यावरण के हिसाब से, एनवायरमेंटलिस्ट के हिसाब से, एक फॉरेस्ट क्रिएटर्स के हिसाब से, अगर मियावाकी फॉरेस्ट बनाने वाले के हिसाब से अगर मैं सोचूंगा तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। टेम्परेचर बहुत हाई होगा और वातावरण में इतना बड़ा चेंजेस आएगा कि गर्मी नाम का चीज़ कहाँ चला गई मालूम नहीं पड़ेगा। ठंडी कभी हो, ठंडी गर्मी बारिश सब मिक्स होना चालू हो जाएगा। ये हमने मार्च में बारिश एक्सपीरियंस ऑलरेडी किया है यहाँ पे। जून फर्स्ट में भुज में बारिश इस बार एक्सपीरियंस अपन ने किया, जबकि अगस्त के बाद बारिश थोड़ा बहुत आया तो आया, नहीं तो नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो जल प्रलय भी होने की संभावना है, बहुत सारे गाँव डूब सकता है। इतनी ज़्यादा जितनी गर्मी बढ़ेगी इतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना क्लाउड ज़्यादा बनेंगे, क्लाउड ज़्यादा जितना बनेगा उतना बरसात बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एटमॉस्फेयर की चेंजेस जिसको बोलते हैं, वातावरण की चेंजेस, ये बहुत ज़्यादा स्केल में होना चालू हो जाएगा अगर अपन बैलेंसिंग करने में फेल हो गया तो। अदरवाइज़
अपन संरक्षण कर दिया तो कोई इश्यूज नहीं आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी सब लोग इसको संरक्षण करने के पीछे लग सकते हैं, क्योंकि सभी लोग आज की तारीख में मैसेज तो दे रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है, बोर्ड में लिख रहा है, वीडियो बना रहे हैं, संदेशा दे रहे हैं, सुबह उठ करके सब लोग गुड मॉर्निंग डालते हैं, प्लीज़ सेव अवर मदर अर्थ बोलते हैं, लेकिन सेव कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चित्र सभी लोग बना रहे हैं, सेव बर्ड्स, सेव ट्रीज, सेव कौन कर रहा है? पर्यावरण के दिन 2 पौधे लगा करके बैनर लगा करके फ़ोटो तो खींचते हैं, 1 साल बाद उनको पूछिए पौधे की क्या हाल है तो कोई बताने को तैयार नहीं रहता। यस, 1 साल बाद इतनी बड़ी हाइट है, जैसा हमें बोल रहे हैं कि 2 साल बड़ा फॉरेस्ट पीछे है, ऐसा देखने को होना चाहिए। तो हकीकत में लोगों को ग्राउंड लेवल में उतर करके काम करने की ज़रूरत है और संदेशों को अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है। और मैंने अभी कहा ऐसा ही छोटा बच्चों में इसको इस विद्याभ्यास के साथ साथ पर्यावरण की एक सेशन जोड़ने की ज़रूरत है। ऐसी जगहों पर बच्चों को, स्कूल के बच्चों को एज ए पिकनिक ला करके दिखाना चाहिए ताकि उनके अंदर एक भावना बढ़े, तब जा कर के संरक्षण होगा। अन्यथा भविष्य बहुत ख़राब है, क्योंकि पर्यावरण में बहुत बड़ी चेंजेस आएगी, उसकी वजह से फ्यूचर बहुत ख़राब होने वाला है। सर, एक बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि आप पास्ट में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, ऐसी कौन सी चीज़ आपको प्रेरणा देती है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके एक पर्यावरणविद बन गए, एक पर्यावरण प्रेमी बन गए और आपने देश भर में जो एक मुहिम चला रखी है, तो इसके लिए आपको क्या प्रेरणा देता है सर? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट ज़रूर हूँ। मैं काफ़ी साल पहले नौकरी करता था, फिर खुद इंडस्ट्रियलिस्ट बना और कभी हूँ मैं जंगल वाला एरिया से, कर्नाटक का बहुत गाढ़ा जंगल के अंदर से हूँ, वहीं मेरा घर आज भी है। तो बचपन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके पौधे लगाने की आदत करता था, स्कूल से भी छुट्टी रहती थी तभी जा करके पौधे लगाता था। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं भारत भर में इतनी बड़ी बड़ी जंगल बना करके विश्व में ऐसा एक योजना बनाने वाला आदमी बन सकता है, ऐसा कभी सोचा नहीं। लेकिन एक बार रोड प्रोजेक्ट के लिए जब पेड़ काटे गए, लगभग 170 बड़े बड़े पेड़ काटे गए, जिसके अंदर 100 साल पुराना पेड़ भी था, उसके अंदर से एक पक्षी का घर जब गिरा हुआ अंडे के साथ, उस पक्षी जो रोना हुआ देखा, वहाँ उतर करके कार से रुक करके उसको देखा, तो मन के अंदर एक भावना आया कि उसका क्या कसूर है, वो पक्षी का कोई कसूर नहीं है ना। हमने उसको कभी बोला है कि भाई 2-4 दिन में हम काटने वाले, तो अपनी शिफ्ट कर ले। हमारा तो घर जब भी कलेक्टर या कोई डिपार्टमेंट से डिमोलिश की नोटिस आती है, हमें 10-15 दिन में खाली कर दो, लेकिन हमने पक्षी को कोई नोटिस दिए बिना ही वो पेड़ काट दिया और उसका कोई कसूर नहीं। वो रो रहा था, इतना ज़ोर से रो रहा था वो कि मुझे कोई हेल्प करो। ऐसे में मेरे को उसकी आवाज़ सुनाई दिया कि मदद की ज़रूरत है। मैंने वो सोच करके यहाँ पे सबसे पहले एक जगह ले करके उसके अंदर एक छोटा फॉरेस्ट, एक मॉडल फॉरेस्ट बनाया। उसमें जो पक्षियाँ घर बनाया हुआ, मधुमक्खी वगैरह देख करके प्रेरित होकर के उसको फिर सब सोसाइटियों में, इंडस्ट्री की कंपाउंड में वगैरह लगाना चालू कर दिया। लोकल में ही वापी तक पहुँचा। उसके बाद लोगों का कॉल आने लगा कि सर आप बनाया हुआ फॉरेस्ट बहुत सुंदर आई हमारे यहाँ। ऐसे करते 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 सर अब तो पूरा देश में जंगल बनाने को शुरू कर दिया, क्योंकि पक्षियाँ और मधुमक्खी और छोटे छोटे प्राणियों को प्रकृति खुद ही जंगल के अंदर तैयार करता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं काली उदी की पक्षियों की आवाज़ पीछे, मैं काली पौधे लगा करके एक जंगल ही बनाया है। उसके अंदर कोई प्राणी, पक्षी को, मधुमक्खी को मैंने कहीं से इंपोर्ट करके उसमें डाला नहीं है, प्रकृति खुद उसमें तैयार कर दिया। इसका मतलब क्रिएटर बहुत अच्छा है, वो प्रकृति सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ है उसके पास, हमें उसके लिए जगह छोड़ने की ज़रूरत है। वो मेरी भावना अभी तक ख़त्म नहीं हुई और मेरी शरीर में जब तक ये जान है, आत्मा है, तभी तक मैं जीवन काल पूरा ये जंगल बनाने का ही काम में निकला हूँ। पर्यावरण का संरक्षण के लिए काम करते हुए आगे बढ़ूँगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सोच है जल वन वायु संरक्षण, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। हमारे जैसे और बहुत सारे वॉरियर्स आगे बढ़ करके उनको साथ दे करके ऐसा संरक्षण करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और जो भी आपने अभी तक बताया, हम आशा करते हैं कि हमारे देशवासियों को ये बहुत ही उपयोगी बनेगा और आने वाले समय में हमारे भविष्य को, जो भविष्य की पीढ़ी है, हम उसको एक अच्छा पर्यावरण दे पाएंगे, एक अच्छा माहौल दे पाएंगे। तो ये थे डॉक्टर आर.के. नायर हमारे साथ, जिन्होंने पर्यावरण दिवस के निमित्त हमें एक संदेशा दिया है। उसको हमें जीवन में कैसे उतारना है वो हम पे निर्भर करता है। हमें एक भविष्य कैसा चाहिए और हमें वर्तमान कैसा चाहिए, ये हमारा खुद का डिसीजन होगा। धन्यवाद। વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે છે અને તમે જોવો છો કે 5 જૂન કેમ છે, કારણ કે વરસાદની સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ। આપણે એપ્રિલ મેની હિન્દીમાં જોઈએ, हिंदी 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 ते मैं कहना चाहता हूँ, चलो डायरेक्ट बोली दो हिंदी। 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, झाड़ काट रहे लोग,
घर बना रहे हैं, मल्टी कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, खास करके सिटी में कोई प्लेस ही नहीं बची है कि सीपेज जावे, पानी संग्रह जावे। पहले के ज़माने में नेचुरल पॉन्ड्स हुआ करते थे, लेक्स हुआ करते थे, पानी संग्रह होता था और ऑटोमेटिकली उसके बाजू में झाड़ उग जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी पेड़ काट रहे हैं हम, दरिया को कचरा डाल के या कुछ फिलिंग करके इसको एनक्रोच करते हैं। तो क्लाइमेट के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो क्लाइमेट आपके साथ खिलवाड़ करेगा। अगर आप ट्रीज़ प्लांट नहीं करोगे तो ट्रीज़ से ही हम जीवित हैं। अगर हम हैं तो झाड़ है, तो हम हैं तो झाड़ है। बिकॉज वॉट दे ब्रीड आउट वी ब्रीड आउट, दे ब्रीड इन, एंड वॉट दे ब्रीड आउट ऑक्सीजन वी ब्रीड इन। अगर झाड़ कहीं पे भी कम होंगे ना, वो देखो वो एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब होगा। ग्लेशियर्स है, जो पहाड़ी ग्लेशियर्स थे टुंड्रा रीजन में, वहाँ पे वो बर्फ़ पिघल रहा है, बर्फ़ जम नहीं रहा है। तो ऐसा आने वाला होगा कि दुकान होगा तो एक वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। संसार में उद्योगों की प्रगति के साथ ही प्रदूषण की भी प्रगति हुई, जो वास्तव में सामान्य प्रदूषण से भी भयावह एवं जानलेवा है। प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकताओं के मद्देनजर भारत सरकार ने सन 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय जल प्रदूषण मंडल का गठन किया। प्रदूषण एवं उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां उद्योग होगा वहां प्रदूषण तो होगा ही। उद्योगों की स्थापना स्वयं में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रत्येक देश में उद्योग अर्थव्यवस्था के मूल आधार होते हैं। यह जीवन की सुख सुविधाओं, रहन सहन, शिक्षा, चिकित्सा से सीधे जुड़ा हुआ है। इन सुविधाओं की खातिर मनुष्य नित नए वैज्ञानिक आविष्कारों एवं नए उद्योग धंधों को बढ़ाने में जुटा हुआ है। औद्योगिकरण ऐसा ही एक चरण है जिससे देश को आत्मनिर्भरता मिलती है और व्यक्तियों में समृद्धि की भावना को जागृत करती है। भारत इसका अपवाद नहीं है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमें कुछ नहीं दिया। सर्वेक्षण के अनुसार 17 समूहों में विभाजित हजारों बड़े उद्योग और 31 लाख लघु एवं मध्यम उद्योग वर्तमान में देश में कार्यरत हैं। आज सिर्फ भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में उद्योगों की संख्या लाखों में है और इसमें कार्यरत लोगों की संख्या करोड़ों में होगी। अलग अलग उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं और उसमें न जाने कितने लोगों के जीवन का अंत हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1992 में प्रसारित हेल्थ एंड एनवायरनमेंट संबंधी रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे विश्व में एक वर्ष में लगभग 3.27 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र में दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें 1,46,000 व्यक्ति मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। भारत जैसे देश में एनीमिया, आँखों के रोग, हड्डियों के रोग, वायुजनित रोग आदि बहुतायत में होते हैं। अतः उद्योगों में कार्य करने वाले लोग कभी न कभी किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझते रहते हैं। पर्यावरणीय संतुलन के लिए वनों का संरक्षण और नदियों का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि धरती को बचाने की मुहिम को इंसान को बचाने के मिशन के रूप में बदलना होगा, क्योंकि मनुष्य और पर्यावरण का परस्पर गहरा संबंध है। पर्यावरण यदि प्रदूषित हुआ तो इसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ेगा और मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और जन स्वास्थ्य को 100% उपलब्ध कर सकना किसी भी प्रकार संभव न हो सकेगा। सभी जानते हैं कि इंसान बड़े बड़े पर्वत खड़े नहीं कर सकता। बेशक चाहकर भी नए साफ समुद्र नहीं बनाए जा सकते, किंतु यह प्रयास तो किया ही जा सकता है कि इन्हें दोबारा से जीवन प्रदान करने के लिए संजीदगी से प्रयास किया जाए। जिस देश को प्रकृति ने अपने हर अनमोल रत्न, पेड़, जंगल, धूप, बारिश, नदी, पहाड़, उर्वर मिट्टी से नवाजा हो और उसको मुकुट के समान हिमालय पर्वत दिया हो और हार के समान गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियां दी हों, यदि वो भी इसका महत्व ना समझते हुए इसके नाश में लीन हो जाए तो इससे अधिक अफसोस की बात और क्या हो सकती है। विवाह, जन्मदिन, पार्टी और अन्य ऐसे समारोहों पर उपहार स्वरूप पौधों को देने की परंपरा शुरू की जाए, फिर चाहे वो पौधा तुलसी का हो या गुलाब का, नीम का हो या गेंदे का। इससे कम से कम लोगों में पेड़ पौधों के प्रति एक लगाव की शुरुआत तो होगी
और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आएगी और इको फ्रेंडली फैशन की भी शुरुआत होगी। सभी शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों आदि में विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के रूप में विद्यालय प्रांगण में, घर के आसपास और अन्य परिसरों में पेड़ पौधे लगाने का कार्य दिया जाए। यदि इन छोटे छोटे उपायों पर ही संजीदगी से काम किया जाए तो निसंदेह परिणाम सुखद ही होगा। सच पूछें तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एक पहल करनी है, यानी खुद को एक मौका देना है। हमारी छोटी छोटी समझदारी भरी पहल पर्यावरण को बेहद साफ सुथरा और तरोताज़ा कर सकती है। उमरगांव के स्थानीय विधायक और पूर्व वन मंत्री रमन लाल पाटकर के कार्यकाल में सीड बॉल तकनीक खूब छाई हुई थी। सीड बॉल का आशय बीज रूपी बॉल से है, जिसे खाद या गोबर के भीतर बीज डालकर गेंदनुमा बनाकर उसे बरसात से पहले खाली पड़ी जमीनों या इलाकों में फेंक दिया जाता है। बरसात के पानी से ये बीज बड़े होकर पौधे और फिर वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए संजीवनी का काम करता है। कई संस्थाएं दूर दराज के क्षेत्रों में इस तकनीक के उपयोग से वृक्षारोपण करने में जुटी हुई हैं। प्रकृति की गोद में बसा हुआ दादरा नगर हवेली, सिलवासा विस्तार अपनी प्राकृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सुप्रसिद्ध कॉपर बनाने वाली कंपनी वेदांता ग्रुप की स्टरलाइट कॉपर ने पर्यावरण संबंधित कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं। बता दें कि स्टरलाइट कॉपर CSR फंड के तहत छात्राओं में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कृषि क्षेत्र में आजीविका कार्यक्रम अंकुर लॉन्च किया, जो विस्तार के चिंचपाड़ा गांव के किसानों और स्वयं सहायता समूहों को लाभ पहुंचा रहा है। स्टरलाइट कॉपर टीम ने 305 किसानों को किचन गार्डनिंग के लिए बीज वितरित किए। 120 किसानों के साथ अतिरिक्त फसल की खेती पर प्रशिक्षण के साथ ही गांव में मशरूम की खेती भी शुरू कराई, जिससे पर्यावरण संवर्धन के साथ किसानों की आवक में भी बढ़ोतरी हुई और उनका जीवन खुशहाल हुआ। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सिलवासा में 826 kWp के सौर ऊर्जा उपक्रम शुरू हुआ, जिसे बढ़ाकर 926 kWp किया गया। मैं द वॉइस न्यूज़ चैनल के सभी जो भी एंकर्स है, जो हमारे रिपोर्टर है, जो कैमरामैन है और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को चुना है विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर और उसी के ऊपर एक कैंपेन चला रहे हैं। आज की डेट में जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज परिस्थितियाँ क्या हो रही हम हमारे सबके सामने हो रहा है। आज समर में ये जो हमारा जो पारा है डिग्री कितनी बढ़ चुकी है। आज इतनी यहाँ पर गर्मी बढ़ चुकी है कि 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमें बाहर निकलना भी हमारे दुश्वार हो गया है। इतनी आज गर्मी बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि आज हम पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं दे रहे और न ध्यान देने की वजह से आज जो ग्लोबल वार्मिंग जैसा जो शब्द है वो आज हमारे ऊपर ऐसा संकट बनकर खड़ा है। तो उससे दूर तभी हो सकते हैं जब पर्यावरण का हम ध्यान रखेंगे, प्रकृति का हम ध्यान रखेंगे, उसके ऊपर सब मिलकर कार्य करेंगे। तो मैं पुनः एक बार द वॉइस न्यूज़ चैनल के सभी जो एंकर्स है, जर्नलिस्ट है, जो कैमरामैन है और जो टीम है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट को चुना है। मैं आपको इस सब्जेक्ट में सफल होने की भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आभार। विश्व पर्यावरण दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी गर्मी के मौसम के अंदर हम देख रहे हैं कि तापमान खूब बढ़ा है, क्योंकि जहाँ जहाँ जंगल थे वो काटे गए हैं और सामने सीमेंट कंक्रीट के जंगल यानी कि घर, मकान, फैक्ट्रियाँ वगैरह बनाई जा रही है। इसकी वजह से तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। यदि हम पर्यावरण का जतन नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में मात्र मनुष्य ही नहीं, पशु, पंखी, जानवर सबको तकलीफ होने वाली है। इसीलिए अपने जन्म दिवस हो या आपके घर में कोई भी शुभ प्रसंग हो या आपको किसी को याद करना है, उस दिन आप ट्री प्लांटेशन करके आपका जन्मदिन या आपके कोई भी शुभ प्रसंग का आप सेलिब्रेशन कीजिए। साथ में आने वाले समय में जब बारिश का सीज़न है तो बारिश का पानी का संचय करके, बोर रिचार्ज करके पानी बचाएं और पर्यावरण का जतन करें। प्रदूषण एक प्रकार का अत्यंत धीमा जहर है जो हवा, पानी, धूल आदि के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसे रुग्ण बना देता है। प्रदूषण के कारण ही विश्व में प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।
इसी कारण बहुत से प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, वन्य प्राणी इस संसार से विलुप्त हो गए हैं। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। आइए हम सब इस बारे में इस वीडियो की मदद से आने वाले भविष्य में पर्यावरण के जतन के बिना हमारा जीवन कैसा हो सकता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? ये साल 2023 नहीं 2033 है। क्या हम अपने आने वाले जनरेशन को ऐसा ही नेचर गिफ्ट करेंगे? ये हमारा आज है, आपका कल हो सकता है, अगर आपने प्रकृति का ध्यान नहीं दिया तो। यदि हमने एनवायरनमेंट का जतन नहीं किया तो, जैसे आज के समय में हमें पानी की बोतल लेके हम घूम रहे हैं, वैसे आने वाले समय में हमें सिलेंडर की बोतल लेके घूमना पड़ेगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं ऐसे भविष्य के लिए? हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। पर्यावरण का जतन करें। सेव एनवायरनमेंट एंड सेव लाइफ। आइए हम सब मिलकर इस पर्यावरण दिवस पर संकल्प लें कि पर्यावरण के जतन और रक्षा को अपना कर्तव्य मानकर गंभीरता के साथ अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण मुक्त स्वच्छ पर्यावरण की भेंट दे सकें। तो ये थी द वॉइस न्यूज़ की खास पेशकश, द वार्निंग, स्टोरी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमारी पूरी टीम, हमारे इस प्रयास में साथ देने वाली सभी संस्थाओं, आर्टिस्ट, टेक्निकल सपोर्ट, सरकारी संस्थाओं और जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में अपना महत्वपूर्ण संदेश देकर इसे सफल बनाने के लिए हमारी मदद की, हम सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जय माँ भारती, वंदे मातरम।